Well, good morning, everyone. Welcome back to Data Structures Theory Session. As you all know, we are about to end this unit, and the last topic that remains is the doubly circular linked list. We have seen singly linked list, and after that, we have seen singly circular. Now, similarly, we have seen doubly linked list, and we are about to see doubly circular now. Now, when we talk about circular, means first and last node must be connected. If it is a singly linked list, then there will be only one direction link forward. If it is doubly linked list, then there will be both direction link, forward and backward. So how it differs? Well, in your simple doubly linked list, the last node next pointer is null and the first node previous pointer is null. Now, instead of having it null, what it says, let's make use of those two pointers and let us point those two nodes each other. So how it becomes circular? The last node next pointer will be now pointing to the first node, and the first node previous pointer will now be pointing to the last node. So both those pointers are pointing to, nodes are pointing to each other, and that makes it circular. And we have two different forward as well as backward pointers. It is called doubly. So it is circular as well as it is doubly linked list. Now those are the only change from doubly to doubly circular, but that change will affect your operations. Like if you have a circular linked list and this is where your starting point is, and if you think about forward direction only, then it is singly circular. But here what happens is you have backward direction also, and that makes it doubly circular. So if you do any operation in between, then it is normal sequential path. There is no problem there. But the problem occurs when we talk about starting and ending, which are actually connected to each other here. Which means if you do something on first or you do something on last, we have to be focused on. And that's where we will be focusing next. So in a doubly circular, we are going to have a look at two insert operations and two delete operations. So let's have a look at insert first, insert last. Remaining will be similar to doubly linked list. So insert at position, insert before, insert after, insert in sorted linked list, everything will be similar to doubly linked list. There will be minor change because we have to maintain circular path. Changes will be either at beginning or ending. And that's where we focus. Let's have a look at the first one. How do we insert first in doubly circular linked list? So, well, you have to think about what if your linked list is already empty. Then your start will be null. And what if you do have few nodes, maybe 1, 2, 3, 4, any number of nodes already there in your linked list? Then your start will be pointing to a node and there might be a sequence of nodes. And being a circular one, the last node next pointer should point to first one, and first node previous pointer should point to last node. We also have a backward path. And that's how your doubly circular linked list will look like. You may have any values. So these are two different cases. Let's think about it. If we want to insert a new node, हमें एक नया नोड चाहिए, अवेल के पास से नया नोड लेंगे, just like a doubly linked list. प्रोग्राम की बात करते हो तो malloc या calloc करके आप मेमोरी allocate करोगे. So just like a doubly linked list.
once you have a new node, then you'll have it in some new node variable n. Once you have a new node, सबसे पहले तो आप उसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर लो. Whatever value you have, you simply store it, no problem there. And then we think about new node pointers. पहले नए नोड के पॉइंटर्स को अपडेट करो, जो करना है कर लो, सेट कर लो. एग्जिस्टिंग वैल्यू को बाद में अपडेट करेंगे. सो इन योर केस 1, फर्स्ट वाला केस जो है जहां पे आपका स्टार्ट नल है, इसका मतलब एक भी नोड आपके पास है ही नहीं. जो नया नोड बना वही फर्स्ट नोड है, वही लास्ट नोड है. और अगर आप इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में डालते हो तो वही लास्ट नोड और वही फर्स्ट नोड खुद को पॉइंट करेगा. वही फर्स्ट नोड और वही लास्ट नोड, मतलब उसका प्रीवियस पॉइंटर भी उसी को पॉइंट करेगा. दैट मेक्स इट सर्कुलर. सो नए नोड के दोनों पॉइंटर जो है वो खुद को पॉइंट करते हैं. What should we write as a code here? So first of all, if condition, if your start is already null, then whatever new node you have created, its next pointer should point to itself. उसी को point करवाओ. Similarly, new node previous pointer will also point to itself. So previous pointer will point to the same node. And then what we do is we update our start. Because it is insert first, start भी update होना चाहिए. So we say start equals to new node. So we have 3 statements in case 1. Okay, now case 1 is handled. How about case 2? Else part. So in this case 2, let's think about it now. नया नोड मिल गया, ओके. अब नए नोड के पॉइंटर को पहले अपडेट करो. सो न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ जाना चाहिए? पुराने फर्स्ट नोड पे, स्टार्ट पे, राइट. नए नोड का प्रीवियस पॉइंटर कहां जाना चाहिए? लास्ट नोड पे. ओके, सो इट शुड गो टू दी लास्ट नोड. ये नए नोड के 2 पॉइंटर हमने अपडेट किए. ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट. न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड पे जाएगा तो स्टार्ट, एंड देन न्यू नोड प्रीवियस पॉइंटर कहां पे जाना चाहिए? कहां पे जाना चाहिए? लास्ट नोड पे. अब लास्ट नोड का एड्रेस मिलेगा कहां से? हु नोज वेयर इज द लास्ट नोड? आप ट्रैवर्स कर सकते हो, यू कैन ट्रैवर्स, बट द बेनिफिट ऑफ हैविंग सर्कुलर लिंक लिस्ट हियर, पहले नोड का प्रीवियस पॉइंटर कहां पे पॉइंट करता है? लास्ट नोड पे. तो ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, लास्ट नोड का एड्रेस डायरेक्ट मिल जाएगा आपको. कहां से मिलेगा? पहले नोड के प्रीवियस पॉइंटर में आपके पास लास्ट नोड का एड्रेस है. टेक इट, स्टार्ट पॉइंट्स टू प्रीवियस, सो दैट गिव्स यू द लास्ट नोड. नए नोड के दोनों पॉइंटर अपडेट हो चुके हैं, फाइन. अब सर्कुलर मैनर में एक नया नोड आप बीच में रख रहे हो ना, सो the older circular links must be updated. ये पुराना सर्कुलर पाथ जो था वो अपडेट होगा. So what should happen here? Last node next pointer जो है वो नए नोड पे जाना चाहिए, एंड एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड जो है स्टार्ट, उसका प्रीवियस पॉइंटर वो भी नए नोड पे आना चाहिए. ओके, सो इट इज समथिंग लाइक you already have 2, 4 and 6 circle.
246 का ऑलरेडी आपके पास सर्कल है। अब एक नई वैल्यू आप x बीच में डाल रहे हो। किसके बीच में डाल रहे हो? 2 और 6 के बीच में आप नई वैल्यू x डाल रहे हो। तो 6 का नेक्स्ट x पे जाना चाहिए, 2 का प्रीवियस x पे आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। 6 का नेक्स्ट x पे लेके जाओ। तो 6 मिलेगा कैसे? 6 इज व्हाट? लास्ट नोड। लास्ट नोड कैसे मिलेगा आपको? स्टार्ट के प्रीवियस से आपको लास्ट नोड मिलेगा। अगर लास्ट नोड मिल गया तो उसका नेक्स्ट अपडेट करो, न्यू नोड। हो गया 6 का नेक्स्ट। अब 2 का प्रीवियस, व्हाट इज 2? एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड, मतलब स्टार्ट का प्रीवियस अपडेट करना है। इट शुड ऑल्सो पॉइंट टू द न्यू नोड। सो 4 पॉइंटर हमने अपडेट कर लिया। नाउ दिस इज इंसर्ट फर्स्ट, तो लास्ट में आपका स्टार्ट भी अपडेट होना चाहिए क्योंकि ये इंसर्ट फर्स्ट है। सो वी अपडेट आवर स्टार्ट and we are done. Now this is the entire process. दोनों केस अलग अलग लिखे। Now think about, can we merge these two cases? क्या ये दोनों केस के लिए एक सिंगल कोड चलेगा? Is it possible? पहले केस में 3 स्टेटमेंट, दूसरे केस में 5 स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट देख के इतना तो पता चलता है कि विदाउट इफ एल्स नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं तो इफ एल्स लगेगा। अगर जो आपके सामने है ऐसे रखते हो देन इट्स ओके, अदरवाइज आप 3 स्टेटमेंट कॉमन निकाल सकते हो, बाकी बचे 2 स्टेटमेंट को इफ एल्स में रखना ही पड़ेगा। वेल सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको अलग करना है या ऐसे ही रखना है। लेट्स हैव अ लुक एट एल्गोरिथम, द सेम प्रोसेस दैट वी हैव थॉट ऑफ राइट नाउ। इफ अवेल इज नल, मेमोरी है ही नहीं, ओवरफ्लो। अदरवाइज वी टेक अ न्यू नोड फ्रॉम अवेल, अपडेट करो अवेल को एंड स्टोर योर डेटा। इतना तो कॉमन है। डेटा स्टोर हो जाने के बाद we'll handle both the cases separately. So if your start is already null, तो 2 पॉइंटर और एक स्टार्ट अपडेट करना है, मतलब 3 स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट है एंड देन यू रिटर्न। अब वो 3 स्टेटमेंट कौन से सीक्वेंस में करते हो डिपेंड करता है कि उसको आप स्टार्ट मानते हो या नहीं। अगर नए नोड को स्टार्ट बना दिया तो नए नोड का नेक्स्ट या स्टार्ट का नेक्स्ट दोनों सेम है। ओके अगर पहले ही नए नोड को मैं स्टार्ट में रखता हूं तो नए नोड का नेक्स्ट अपडेट करूं या स्टार्ट का नेक्स्ट अपडेट करूं, बोथ आर सेम। सो स्टार्ट नेक्स्ट इज स्टार्ट, स्टार्ट प्रीवियस इज स्टार्ट, मेक इट सर्कुलर एंड देन यू रिटर्न। अदरवाइज यू विल गो फॉर द सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या करते हैं हम, 4 पॉइंटर और एक स्टार्ट अपडेट करना है, मतलब 5 स्टेटमेंट लगेंगे। स्टार्ट का प्रीवियस आपको क्या देता है? लास्ट नोड। तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया ptr which is nothing but the last node. ptr is nothing but the last node. So हर बार start points to pre यूज नहीं करेंगे, हम ptr यूज कर लेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल which points to the last node. ठीक है, अब आपके पास पहला नोड है स्टार्ट में, नया नोड है न्यू नोड में और लास्ट नोड है ptr में। तीनों नोड आपके पास हैं, पॉइंटर्स मैनेज करो। सो न्यू नोड नेक्स्ट पहले नोड पे मतलब स्टार्ट, न्यू नोड प्रीवियस लास्ट नोड पे मतलब ptr, देन लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब ptr का नेक्स्ट न्यू नोड पे।
फर्स्ट नोड का प्रीवियस मतलब स्टार्ट का प्रीवियस, वो भी नए नोड पे। 4 पॉइंटर डन, अपडेट योर स्टार्ट एंड रिटर्न, right? So you can take a temporary variable to make it simple, और अगर temporary variable नहीं लेना है then कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा। You can use PTR at this place। अगर आपने नया नोड नया temporary variable लिया है then use PTR, otherwise start points to previous। So both are same, no change, just this one takes extra memory, and that is your insert first। Now what do you think, what will be the change from insert first to insert last? Yes, start update नहीं करना है। If you remove this line, it becomes insert last, that's it। बाकी सर्कल में x तो वहीं पे जाएगा, 2 and 6 के बीच में ही जाएगा x। अगर 2 से x पे लाते हो स्टार्ट तो वो हो गया इंसर्ट फर्स्ट, लेकिन 2 से x पे नहीं लाते हो स्टार्ट को तो वो बन गया इंसर्ट लास्ट। सो रिमूव दिस लाइन and you are done। We'll directly have a look at the algorithm। Case 1, no change। अगर लिंक लिस्ट खाली है तो इंसर्ट लास्ट करने पे भी आपका स्टार्ट अपडेट होगा। So in your case 1 there is no change। So if avail is null, overflow, otherwise you take a new node, avail को अपडेट करो, नए नोड का डेटा सेट करो। Still case 1 same, अगर स्टार्ट नल है तो नए नोड पे स्टार्ट को लेके जाओ, सर्कुलर पॉइंटर एंड रिटर्न, नो चेंज टिल दिस पॉइंट। अगर केस 1 नहीं है तो आप सेकेंड केस में क्या करते हो, लास्ट नोड को पीटीआर में लो, देन अपडेट योर 4 पॉइंटर्स। 4 पॉइंटर अपडेट तो करना ही है। नए नोड का नेक्स्ट पहले नोड पे, नए नोड का प्रीवियस लास्ट नोड पे, लास्ट नोड का नेक्स्ट न्यू नोड पे, और पहले नोड का प्रीवियस न्यू नोड पे। तो स्टिल दोज 4 पॉइंटर्स आर सेम, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके बाद हमने स्टार्ट को अपडेट किया था, वो नहीं करेंगे। सिंपली रिटर्न हो गया आपका इंसर्ट लास्ट। ओके, so that's all about insert first and insert last। I'll keep this slide on the screen। Try to understand these 4 pointers। 4 पॉइंटर जो आप अपडेट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा लिंक लिस्ट समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड लिंक लिस्ट तो ट्री भी आपके लिए इजी रहेगा। By that time, if you have any doubt or question, you may ask। Let me show you the figure that we have drawn। Okay, so everyone clear with insert on doubly circular? Yes or no? Okay, then let's have a look at delete operations।
Just like insert, we'll have a look at delete first, delete last. Other delete operations are similar to doubly linked list. Let's focus on delete first. अगर लिंक लिस्ट खाली है तो nothing to delete. So common case for all delete operations. If start is null, underflow. Then we'll have a look at few other cases. What if your start is pointing to the node which happens to be the only node in your linked list? एक ही नोड है तो कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखेगा. एंड व्हाट इफ यू हैव मोर देन वन नोड? अगर एक से ज्यादा नोड है तो ऑब्वियसली एक सीक्वेंस बनेगा और फर्स्ट लास्ट नोड एक दूसरे को पॉइंट करेंगे. Right, so that's your doubly circular linked list. Now we want to delete first node here. Case 1, एक ही नोड है आपके पास तो वो नोड डिलीट हो जाएगा. केस 2, एक से ज्यादा नोड है आपके पास तो पहले वाला नोड आप डिलीट करोगे. Now what if we delete those nodes? तो पॉइंटर कौन से मैनेज करने होंगे? फर्स्ट केस में सिंपल हो गया, मेक योर स्टार्ट नल, काम खत्म. एक ही नोड था वो भी डिलीट कर दिया तो लिंक लिस्ट खाली. अगर लिंक लिस्ट खाली है तो स्टार्ट नल. वेरी मच सिंपल वन. इफ यू हैव ओनली वन नोड तो आप स्टार्ट को फ्री करोगे एंड देन यू विल अपडेट योर स्टार्ट विथ नल. दिस इज योर केस 1. नाउ हाउ डू यू डिसाइड that you have only one node? आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही नोड है? स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट. अगर पहले नोड का नेक्स्ट पॉइंटर उसी को पॉइंट करता है then in circular manner we can say we have only one node. So we'll verify that with, if your start points to next is pointing to itself start, then you have a single node and you delete that node, start becomes null. इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, if start previous points to start, then also you can decide you have a single node. So that's your case 1. Now what if start next is not start? अगर start का next pointer start को नहीं second node को point करता है, which means you have more than one node. और अगर एक से ज्यादा नोड है तो सेकंड केस बनेगा. फर्स्ट नोड को अगर आप डिलीट करते हो तो आपके ये जो दो सर्कुलर लिंक हैं वो भी अपडेट होंगे. अगर पहला नोड डिलीट हो जाता है तो सेकंड नोड विल बिकम द फर्स्ट नोड. सेकंड नोड जो है वो उसके बाद पहला नोड बनेगा. तो आपका एग्जिस्टिंग लास्ट नोड जो है उसका नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए. कहां जाना चाहिए? सेकंड नोड पे. सेकंड नोड जो है उसका प्रीवियस भी अपडेट होना चाहिए एंड इट शुड पॉइंट टू लास्ट नोड. अब ये सर्कल अगर आपने मेंटेन कर लिया तो स्टार्ट को अपडेट कर लो, विच मीन्स 3 वैल्यू चेंज करनी है आपको. लास्ट नोड का नेक्स्ट, सेकेंड नोड का प्रीवियस एंड स्टार्ट. ये 3 अपडेट करने होंगे. लेट्स थिंक अबाउट इट. लास्ट नोड का नेक्स्ट, लास्ट नोड कैसे मिलेगा? स्टार्ट के प्रीवियस से मुझे लास्ट नोड मिलेगा, राइट? उसका नेक्स्ट अपडेट करो. ओके, क्या डालना है उसके अंदर?
लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है आपको? सेकेंड नोड. कैसे मिलेगा? स्टार्ट के नेक्स्ट से आपको सेकेंड नोड मिलेगा. यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ चेनिंग प्रोसेस. अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, चलेगा. ओके, सो लास्ट नोड नेक्स्ट हो गया. सेकेंड नोड का प्रीवियस अपडेट करना है. हाउ विल यू हैव सेकेंड नोड? स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट गिव्स यू द सेकेंड नोड. सेकेंड नोड का प्रीवियस अपडेट करना है. प्रीवियस अपडेटेड. लास्ट नोड असाइन करना है. कैसे मिलेगा लास्ट नोड? दोनों पॉइंटर अपडेट हो चुके हैं. वी कैन अपडेट आवर स्टार्ट. तीसरी चीज कौन सी अपडेट करनी थी? स्टार्ट को. वी कैन अपडेट आवर स्टार्ट, बट बिफोर यू अपडेट स्टार्ट को अपडेट किया तो फर्स्ट नोड गायब हो जाएगा. डिलीट कैसे करोगे? मेक इट फ्री. पहले फ्री कर दो उसकी मेमोरी. पहले नोड को फ्री कर दो. अब फर्स्ट नोड अगर फ्री हो गया, वो मेमोरी गई, मतलब ये वाली मेमोरी जो आपके पास थी वो गई, तो ये स्टार्ट भी गया. अब आपको क्या करना है? यू वांट टू अपडेट योर स्टार्ट एंड इट शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, सेकंड नोड. स्टार्ट सेकंड नोड पे जाना चाहिए. तो सेकंड नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा? सेकंड नोड का एड्रेस कहां से मिलेगा? फर्स्ट नोड के पास था लेकिन वो तो डिलीट हो गया, तो फर्स्ट नोड को भूल जाओ. अब सेकंड नोड का एड्रेस कहां पे है? लास्ट नोड के पास. लास्ट नोड के नेक्स्ट को हमने क्या किया था? लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमने क्या डाला था? सेकेंड नोड. एंड दैट्स व्हाट वी वांट. तो हमें वो कहां से मिलेगा? लास्ट नोड के नेक्स्ट से. लास्ट नोड कैसे मिलेगा? फर्स्ट नोड है ही कहां? उसको तो डिलीट कर दिया. एक टेम्पररी कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा. एक तो टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा. नाउ यू डिसाइड, सेकेंड नोड के लिए टेम्पररी लेना है या लास्ट नोड के लिए टेम्पररी लेना है. कोई भी ले लो. फर्स्ट नोड के लिए भी आप टेम्पररी लेना चाहते हो तो डेल करके ले सकते हो. जो करना है करो. लेट्स से we take a temporary variable ptr and let's assign it to the last node. ptr को लास्ट नोड पे डाल दिया, तो जहां भी स्टार्ट पॉइंट्स टू प्री है वहां पे आप ptr लिख सकते हो. लास्ट नोड के नेक्स्ट को सेकंड पे लेके गए, सेकंड के प्रीवियस को लास्ट पे लेके गए. ठीक है. देन स्टार्ट को फ्री किया एंड देन वी हैव अपडेटेड स्टार्ट विद द सेकंड नोड. कहां से मिलेगा? ptr के नेक्स्ट से. देन यू आर ओके. सो व्हेन यू ट्राई समथिंग और आगे जाके जब आप अटक जाते हो तो पता चलता है कि अच्छा कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे. राइट. सो व्हाट आई वांटेड टू से इज you try it without any extra variable. You tried, then when you stuck, think about having an extra variable. Otherwise go along with your existing code. Well, so that's your delete first. Let us have a look at the algorithm. If start is null, underflow. If start next is start, तो एक ही नोड है जिसको आप फ्री करने के बाद स्टार्ट नल कर दोगे एंड यू रिटर्न. खत्म.
अगर एक से ज्यादा नोड है देन लेट्स हैव अ टेम्पररी वेरिएबल, सेकंड पे भी रख सकते हो, लास्ट पे भी रख सकते हो. Now this algorithm shows we have taken start pre मतलब last node. PTR is a last node. ठीक है, लास्ट नोड के नेक्स्ट को सेकंड पे लेके जाओ. ठीक है, सेकंड के प्रीवियस को लास्ट पे लेके जाओ. पहले नोड को फ्री करो एंड देन यू अपडेट योर स्टार्ट विद द सेकंड नोड. सेकंड नोड कहां से मिलेगा? लास्ट नोड के नेक्स्ट से. एंड देन यू रिटर्न. So this is your delete first. Read it one more time. Try to understand. Okay, now what do you think? इसमें क्या चेंज करूं तो डिलीट लास्ट हो जाएगा? स्टार्ट अपडेट नहीं होगा. ठीक है, चलो उसके अलावा इसमें क्या चेंज करूं? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. अगर इसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके लास्ट मिल पाएगा, मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट इट. क्या ये पॉसिबल है? वेल, इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं है? This is your 246 doubly circular. Now let me have one more value. 2468 circular. अगर आप 2 को स्टार्ट मानते हो तो जहां पे आपका स्टार्ट है उसी को डिलीट करना चाहते हो आप, तो उसके आगे और उसके पीछे जो भी है वहां पे आप अपडेट करते हो. तो ये इजी है. स्टार्ट के आगे पीछे डायरेक्ट नोड मिल गया, इजी है. बट लेट्स थिंक अबाउट 2468. Two is your start, and if you want to delete last, अगर लास्ट को डिलीट करना है तो आप 8 को डिलीट करते हो, और अगर 8 को डिलीट करना है तो कुछ इस तरह से पॉइंटर्स अपडेट होंगे. अब स्टार्ट तो आपके पास था, लास्ट नोड भी आपके पास डायरेक्ट मिल जाएगा, बट हाउ अबाउट 6 कैसे मिलेगा? अगर 8 को डिलीट करना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डेल ले लो. अब ये डेल आपके पुराने स्टार्ट जैसा हो गया. स्टार्ट के आगे पीछे अपडेट करते थे, यहां पे आप क्या करोगे? डेल के आगे पीछे अपडेट करोगे. बाकी सब कुछ सेम. हाँ, यहां पे स्टार्ट को अपडेट किया था, यहां पे स्टार्ट को अपडेट नहीं करेंगे. वो तो वैसे भी कैसे डिलीट फर्स्ट या डिलीट लास्ट स्टार्ट अपडेट नहीं होता. बट पॉइंटर्स वाला जो केस हमें समझ में नहीं आया, उसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो. जो एक नोड आपके पास है उसके आगे पीछे आप अपडेट करते हो, और जो एक नोड जिसको आप डिलीट करते हो उसके आगे पीछे. सो अगर आप 8 को डिलीट करते हो तो उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में ले लो, देन उसके आगे पीछे. सो एट दिस प्लेस जहां भी आपको स्टार्ट दिखता है वहां पे आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डेल लेके काम करोगे.
तो वो delete last हो जाएगा. So let's think about it. Because delete last is somewhat a different case, let us think about it. Case 1 will be same, no change. अगर एक ही नोड है, आप उसको डिलीट करते हो, then your start becomes null. तो ये सेम केस हो गया, इसके लिए हम कोड नहीं लिख रहे हैं अभी. We will focus on the second case. What if I have multiple nodes here? And you want to delete last. तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो del, जो लास्ट को पॉइंट करेगा. कैसे मिलेगा लास्ट नोड? स्टार्ट के प्रीवियस से लास्ट नोड मिलेगा. ओके, सो व्हाट वी डू हियर इज वी टेक अ टेम्पररी वेरिएबल del, जिसको हम लास्ट नोड पे पॉइंट करवाएंगे. सो स्टार्ट पॉइंट्स टू प्रीवियस, मिल गया लास्ट नोड. अब del इज योर लास्ट नोड. अगर उसको डिलीट करते हो तो पॉइंटर कौन कौन से बदलेंगे? सेकेंड लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करो, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर अपडेट करो, काम खत्म. स्टार्ट तो अपडेट नहीं करना है हमें. सो वी हैव टू हैंडल 2 पॉइंटर्स हियर. 6 कैसे मिलेगा? del के प्रीवियस से आपको 6 मिला, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना चाहते हो, और वो कहां जाना चाहिए? फर्स्ट नोड मतलब स्टार्ट. ठीक है, वो हो गया. अब पहले नोड के प्रीवियस मतलब स्टार्ट के प्रीवियस को अपडेट करो. कहां जाना चाहिए? 2 का प्रीवियस कहां जाना चाहिए? 6 पे. 6 कैसे मिलेगा? del के प्रीवियस से. बस यही देखना था आपको. स्टार्ट अपडेट नहीं करेंगे. सो दिस इज योर delete last. If start is null, underflow, otherwise you handle your case 1. If you have only one node, delete that node, make your start null and return. If you have multiple nodes, तो start के previous को एक बार PTR में ले लो. अब PTR is nothing but del, जिसको आप free करते हो. But before you make it free, 2 pointers update करने हैं. Let's have a look at it. Yeah, I've taken one more temporary variable here, pre-PTR. Pre-PTR, which is nothing but the second last node. Just to make it simple one, मतलब अगर ये del है आपका, तो इसको भी आप pre में ले लो. तो फायदा क्या होगा? You can write pre here and you can write pre here. So in algorithm, what I've done, I've taken one more extra variable like pre-PTR, which is pointing to the second last node. तो second last node के next को first node पे लेके जाओ, और first node के previous को second last पे लेके जाओ. Simple. And then you make your PTR free and return start. That's your delete last. Delete first से थोड़ा अलग है. So here we complete our linked lists. Singly linked list, singly circular, doubly circular. How about applications? Where do you see linked lists can be used? अगर linked list समझ में आया है
तो ये सोचते हैं कि इसको यूज कहाँ कर सकते हैं। लिंक लिस्ट का यूज आप स्टैक और क्यू बनाने के लिए भी कर सकते हो। अभी तक हमने स्टैक और क्यू एरे से बनाया था। What are the limitations of array? Fixed size, continuous memory allocation. Those are the limitations of array. अगर आपको स्टैक चाहिए जो फिक्स्ड साइज का ना हो, जो कंटिन्यूअस मेमोरी ना मांगे, तो उसको आप लिंक लिस्ट से बना सकते हो। When you go for push, आपको एक इंसर्ट ऑपरेशन करना होगा, लिंक लिस्ट का इंसर्ट ऑपरेशन। एंड व्हेन यू गो फॉर पॉप, आपको एक डिलीट ऑपरेशन करना होगा। Now we know that we have multiple options of insert and delete. तो कौन सा इंसर्ट और कौन सा डिलीट करेंगे, अगर ये पता चल गया तो स्टैक तो आसानी से बन गया। सो व्हाट डू यू थिंक, लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे मिलेगा मुझे? इंसर्ट फर्स्ट डिलीट फर्स्ट, जहां पे इंसर्ट किया वहीं से डिलीट करोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मिलेगा। स्टैक में इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन, पुश एंड पॉप, दोनों कहां पे होते हैं? टॉप पे। दोनों टॉप पे होते हैं, मतलब जहां पे इंसर्ट किया वहीं से डिलीट करना है। तो लिंक लिस्ट में आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट फर्स्ट डिलीट फर्स्ट, हो गया स्टैक। अब लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन फाइल आपके पास है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि पुश करने पे कौन सा फंक्शन कॉल करूं। अगर यूजर बोलता है पुश, आप कॉल करोगे इंसर्ट फर्स्ट। अगर यूजर बोलता है पॉप, आप कॉल करोगे डिलीट फर्स्ट। हो गया आपका स्टैक। हाँ, यू कैन यूज इंसर्ट लास्ट डिलीट लास्ट ऑल्सो। इंसर्ट लास्ट डिलीट लास्ट ये भी आपको स्टैक बना के देगा, लेकिन लास्ट में क्यों करने जाऊं? अगर सिंगली है तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, हेडेक है। why don't I go for first? So that's why we can say insert first delete first is better option to create a stack. Now same way queue कैसे बनेगा? इंसर्ट फर्स्ट, जहां से इंसर्ट किया उसकी ऑपोजिट जगह से डिलीट करो, तो डिलीट लास्ट विल गिव यू क्यू। लेकिन क्यू समझने के लिए हम लेट्स गो फॉर नॉर्मल थिंकिंग। कोई भी लाइन में आप कहां पे खड़े रहते हो? लास्ट में। तो लेट्स गो फॉर इंसर्ट लास्ट एंड डिलीट फर्स्ट। तो ये नॉर्मल क्यू थिंकिंग हो गया। दैट विल ऑल्सो गिव यू क्यू। तो क्यू दोनों तरह से बन सकता है, दोनों इक्वल है। इंसर्ट फर्स्ट किया तो डिलीट लास्ट करने में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर डिलीट फर्स्ट किया तो इंसर्ट लास्ट करने में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक जगह पे ट्रैवर्स करना है, सो बोथ आर इक्वल। Now you have to traverse if you have singly linked list or doubly linked list. You need not to have traversal process if you have a circular linked list. One more benefit, circular linked list से आप circular queue भी आसानी से बना पाओगे। So linked lists can be used to implement stacks and queue. It can also be used to implement graphs. Tree is nothing but a special kind of graph जहां पे लूप नहीं है, साइक्लिक पाथ नहीं है, तो ट्री को भी मैं ग्राफ मानता हूं। एंड हियर आई से ग्राफ, सो एक्चुअली ट्री एंड ग्राफ बोथ। सो यू कैन यूज लिंक लिस्ट टू क्रिएट योर ग्राफ। नाउ एक्चुअली ग्राफ फिजिकली तो आपको कहीं ना कहीं लिंक्स दिखेंगे, मेमोरी में तो लिंक बना नहीं पाएंगे। तो मेमोरी में हम वो लिंक कैसे बनाएंगे? विल हैव एडजेसेंसी लिस्ट फॉर दैट। Excuse me. So we will have adjacency list. Now in next unit देखेंगे कि adjacency list क्या होता है। Okay. So what is adjacency list? It actually represents the graph. कैसे represent करता है? So
It actually stores the adjacent node address. Adjacent मतलब पास में और कौन है उसके एड्रेस याद रखो. How? We'll see it later. Then when you go for dynamic memory allocation, you also make use of avail. What is avail? Linked list of a free block. कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अवेल कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स यूज ऑफ लिंक लिस्ट to remember the list of free blocks. It is also used to maintain directory names. Generally directory names are nothing but tree. You have drive X, उसके अंदर आपके पास 3 फोल्डर है. वो 3 फोल्डर के अंदर भी आपके पास कुछ फाइल्स हैं. So what is this? A kind of a tree structure. Tree याद रखना है तो लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज ट्री इज नथिंग बट अ ग्राफ. तो जब आप हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी स्टोर करके रखते हो, you have number of drives A, B, C, D, and in all those drives you have number of folders, and those folders are having subfolders as well as files. जब माई कंप्यूटर ओपन करके लेफ्ट साइड आप जो ट्री देखते हो वो कहाँ से आता है? लेफ्ट साइड जो आपको ट्री दिखता है वो कहाँ से आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेंबर्स दैट एंटायर ट्री यूजिंग लिंक लिस्ट बिकॉज इट इज डायनेमिक. मन पड़ा तो फोल्डर क्रिएट किया, मन पड़ा तो डिलीट किया. फ्रेंड नई मूवी लेके आता है तो न्यू फोल्डर, न्यू मूवी, कॉपी एंड पेस्ट. सारी मूवी देख ली, डिलीट. So it is dynamic. You don't know what will be the size of that tree. तो array तो ले नहीं पाओगे, linked list ही लेना पड़ेगा. So that's one more use. Arithmetic operations on long integers. अगर long integer पे आपको arithmetic operations करने हैं तो भी linked list use होता है. Now why? Because if I say this is a single number, can you store it in simple integer variable? Can you store it in simple integer? No, because integer अगर 2 बाइट का आप मानते हो तो उसकी रेंज फिक्स है. -32767 से लेके +32768, सॉरी उल्टा बोला, -32768 से लेके 32767. अगर पॉजिटिव ही याद रखना है देन 655 क्या था रेंज. इसका डबल करो, 32767 का डबल करो, that will be the 0 to positive range, but still this number is not within that range. तो इसको कैसे करोगे? इस पे अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है तो कैसे करोगे? दिस इज बिग डेसिमल नंबर. फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है तो इंटीजर भी बोल सकते हैं. सो हाउ डू यू हैंडल दिस थिंग? maybe you add few numbers, and when you have a carry bit, forward it to previous node. carry जाएगा कहाँ? previous node पे. add few numbers and forward your carry to the previous node, and so on. You can perform arithmetic operations now, but you have to go for digit by digit, remember. So that's one way. Even polynomial equations can also be handled using linked list. To store polynomial equations you can use linked list. Polynomial equation में आपके पास क्या coefficients रहते हैं? A, B, C, D.
ax² plus bx plus c, या तो फिर let's have ax plus by plus c. But what you have to remember is a, b, c, d coefficients. Let's have those coefficients in each node. Each node gives you the sequence, right? And your equation also gives you the sequence, x to the power, and then power will decrease, x raised to 2, x raised to 1, x raised to 0. ये भी सीक्वेंस है. लिंक लिस्ट भी आपको 3 नोड का एक सीक्वेंस देगा. सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर कि भाई पहला नोड जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं. इट इज डायरेक्टली मैप्ड. यू हैव 3 नोड. पहला नोड x² का, दूसरा नोड x raised to 1 का, तीसरा नोड x raised to 0 का कोएफिशिएंट है. हो गया. So you can also store those equations using linked list, right? So those are few applications of linked list. एक और बात बताऊं, आपकी हार्ड डिस्क जो है पूरी की पूरी वो इंटरनली लिंक्ड लिस्ट मैनेज करती है. ऑपरेटिंग सिस्टम डज दैट पार्ट. अब क्यों करना पड़ेगा? क्यों? Why do we need that thing in your hard disk? Let us say this is your hard disk. पूरी हार्ड डिस्क खाली है. सबसे पहली बार जब आप अपना नया कंप्यूटर खरीदते हो, खाली है, लेकिन सबसे पहली चीज उसके अंदर कौन सी जाएगी? यू विल इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने ओएस इंस्टॉल किया, हार्ड डिस्क में गया. ओएस इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही डेस्कटॉप आपको मिलता है, यू स्टार्ट इंस्टॉलिंग योर सॉफ्टवेयर्स. कुछ सॉफ्टवेयर डाले आप. अब जो बाकी बचा वो आपके लिए स्पेस है. नया नया कंप्यूटर आया है, फ्रेंड भी आ गया, कौन सी मूवी है आपके पास? ला 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 पेन ड्राइव दे. सो क्या करते हो आप? मूवीज हो गया. अच्छा, तेरे पास सॉन्ग्स भी है? सॉन्ग्स. अच्छा, उसके बाद मे भी कुछ प्रोग्राम्स. हर बार मूवी, सॉन्ग और गेम, इसके अलावा कुछ भी और है? प्रोग्राम्स है. ठीक है, चलो प्रोग्राम्स डाल दिए. दिस इज हाउ यू स्टार्ट फिलिंग अप योर हार्ड डिस्क. लेकिन जो आपके फ्रेंड ने मूवीज दी थी, उसमें से 1-2 मूवी आपने देखी, पसंद नहीं आई, डिलीट करी. बीच में से आपने मूवी डिलीट करी, जगह खाली पड़ी, फ्री स्पेस. सॉन्ग भी उसने जो दिए थे कुछ अच्छा नहीं लगा बीच में कहीं. यू हैव एम्प्टी स्पेस, राइट? अब नया मूवी आता है फिर से, लेकिन जो आपका फ्रेंड मूवी लेके आया वो ब्लूरे डिस्क रिप है, 4 GB का फाइल. नया मूवी कॉपी पेस्ट किया, 2 GB यहाँ पे स्टोर हो गया, लेकिन वो फाइल 4 GB का था. बाकी का 2 GB जाएगा यहाँ पे. That's how your hard disk space will be used. तो ये जो बीच में खाली जगह पड़ती है, एंड उसको फिल करने के लिए जब आप फाइल स्टोर करते हो तो एक टुकड़ा वहां पे, दूसरा टुकड़ा कहीं और. आपकी जो मूवी थी 4 GB की, वो 2-2 GB के टुकड़े हो गए. एक टुकड़ा कहीं और है, दूसरा कहीं और है. दोज आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. आपका डेटा जो है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया. आपकी मूवी 2 टुकड़े में डिवाइड हो गई. दोज आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स.
सो जैसे ही आप अपना पीसी ज्यादा यूज करोगे, फ्रेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे. But those fragments actually do maintain the linked list. क्योंकि जब मूवी प्ले करते हैं तो कभी ऐसा होता है आधा टुकड़ा प्ले होके बंद हो गया, दूसरा टुकड़ा आप स्टार्ट करने जाते हो. नो. सो फर्स्ट पोर्शन विल हैव द एड्रेस ऑफ सेकंड वन. जब भी ये पहला पोर्शन खत्म होता है तो उसके एंड में दूसरे पोर्शन का एड्रेस है. ऑपरेटिंग सिस्टम वो एड्रेस ढूंढ के वहां से बाकी का मूवी लेके आएगा, आपको कंटिन्यू प्ले मिलेगा. हाउ इट इज डन? बाय लिंक लिस्ट. नेक्स्ट पोर्शन का एड्रेस रखो वहां पे. सो दैट्स वन मोर प्लेस वेयर लिंक लिस्ट इज यूज्ड. बट जितने फ्रेगमेंट्स ज्यादा होंगे उतना लिंक लिस्ट लंबा बनेगा. अगर लिंक लिस्ट लंबा हुआ तो जंप ज्यादा करोगे, एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन. अगर जंप ज्यादा करने हैं तो टाइम लगेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, जब आपकी हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो पीसी स्लो हो जाता है. कभी कभी आपने सुना होगा डीफ्रेगमेंट कर ले, स्पीड बढ़ जाएगी. डीफ्रेगमेंट मतलब डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो क्या करता है, कोई भी डेटा अगर टुकड़ों में पड़ा है सबको उठा के एक जगह पे लेके आओ. हाँ, लेकिन उस जगह पे लाने के लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी. तो वहां पे जो डेटा है उसको कहीं और, भाई खिसक, यहां से खिसक, जगह बना, तो मैं दूसरे टुकड़े को यहां पे ला. नाउ दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ योर एंटायर डेटा टेक्स टाइम. डीफ्रेगमेंट करने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार डीफ्रेगमेंट कर लिया तो फ्रेगमेंट्स कम हो जाएंगे. फ्रेगमेंट कम हो जाएंगे तो आपके पीसी की स्पीड थोड़ी तो बढ़ जाएगी. सो that was one more point where linked lists are being used, and that's the end of this unit. Linear data structures are over. We'll stop here for today. Thank you, everyone. In the next lecture, we are going to have a look at third unit, which is non-linear data structures. We will start with tree. That's all. Thank you.